بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق ابرار آفیشل کا اس پلیٹ فارم کا تمام سامعین نا میری طرفوں خلوص پر اسلام پیش ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے جی۔ جملہ اراکین کی کوشش جڑی ہیں کاوش وے قابل داد ہیں کہ سوشل میڈیا کا اس جڑو ایک قسم کی حکوموں کے بہارنگ بچ جت بہت سارو طوفان ہے کہ جس میں چھٹن چھیرنا مجھ سارو وقت جڑو ہے وہ نکل جائے کہ چنگی چیز کی عید ہے، باقی منفی اس کا کہ پہلو ہے۔ تو اس میں تم نے ایک بڑو کوالٹی والو یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کی ہوا ہے اہل ذوق حضرات نا، اہل علم حضرات نا، کہ جس کے بچ مختلف شخصیات نا سننے کو موقع ملتا رہے۔ آج تم نے منا اپنی محبتوں سنگ نوازو، تھارو بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ ہوں صفحے سامعین میں یا ناظرین میں ہی ویسنو پسند کروں تو، لیکن محترم طارق بھائی نے اس چیز کو واسطے کیوں تو میں بھی ان کو سادو اکھاں چشمہ و جناب سارا کو بہت بہت شکریہ۔ اور اس کلب ہاؤس کی ایک اور بھی میں نے چنگی گل لگا ہے کیوں اپنی کچھ ایک ٹوٹی گل تھارے گوش گزار کروں اس تو پہلا، کیونکہ مجھ ساری چیز میں کہ جنہاں کے اوپر ریاکاری کو رنگ چاڑ گئے، ایمیں دکھاوا کو پڑوسا دے گا چوپڑ چاپڑ کر کے پیش کی ہو جائے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا بچ اوریجنلٹی ہے جڑی وہ سامنے آوے، وہ اس پروگرام کو خاصو ہے کہ جس میں بولن والو جڑا ہے وہ بغیر کسی اس کو پالشڈ جڑی بناوٹی پالش ہے اس نہ چھوڑ گئے، بالکل وہ چیز سامنے لے آوے کہ جڑی مبنی پر حقائق ہیں۔ تو اس حوالہ کے نال تھاری یہ ساری کوشش جڑی ہیں یہ قابل داد ہیں، تم سارا نا مبارکباد پیش کروں اس کلب ہاؤس کا، اس پیج کا جتنا بھی اراکین ہیں سب۔ معزز خواتین و حضرات، ہم بہتر جانا کہ نسل آدم کے نال تعلق رکھنے والو ہر شخص جڑو ہے وہ آدمی کو آوے، وہ اس منصب کے اوپر فائز ہے کہ جس نا افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات کائنات میں، بلکہ ایک قدم اور اگر ایڑے جا کے دیکھاں تو خدا نے اپنا نائب بنا گئے اس دھرتی کے اوپر انسان میں چلائے۔ جس طرح بوٹی گہنا دو بغیر اس کی ٹوم اس کا ہار سنگار جڑا ہے اس تو بغیر جڑی وہ اڈکھی رہے، اسی طرح انسان تعلیم کا اس زیور دوں یا تعلیم جڑی یا بھی انسان واسطے ٹوم کو کم کرے، اس واسطے زیور کی طرح ہے کہ جس کے نال خدا نے اس نے جڑو حسن دیتا ہوا ہے تو اس حسن میں زیادہ نکھار آوے۔ اب تعلیم ہی وہ چیز ہے کہ جڑی حق اور باطل کے درمیان میں کند چاڑے، صحیح اور غلط کے بشکار ایک لکیر چھکے، جائز اور ناجائز نہ نکھیڑ کے دسے، گویا یا دوجا لفظ میں اگر اس طرح ہم کہاں کہ پانی کو پانی دے دودھ کو دودھ کر دے نکھیڑ کے پنی دسے تو یہ تعلیم ہی ہے۔ انسان نہ اندھیرا تو باہر کٹ گئے لوگ بچانے، یہ سب تعلیم کو ہی کمال ہے۔ اور خدا نے انسان پر مجھ سارا احسانات کیے ہیں جنہاں بچوں کہ کسی شخص نے اگر قلم پکڑنے کی جانچ آ جائے یا دو لفظ بولن کی جانچ آ جائے یا اچھا طریقہ کے نال سنن کی جانچ آ جائے تو یہ خدا کی کرم نوازی ہے اور اس شخص کے اوپر اللہ کی بڑی عنایات ہیں۔ الحمدللہ ہم سارا اپنی اپنی بساط کے مطابق قلم کے نال جڑیا ہواں، حرف کے نال جڑیا ہواں، کتاباں کے نال جڑیا ہواں، اور نتیجہ کہ ہے کہ اس میں سارا ہم خیال ہو جائے، ایک دوجہ کی تلخیں ایک دوجہ کی شیرینی ہم بخوبی سمجھ لیں۔ لیکن تعلیم خاص کر یا تعلیم کی ایک آفاقی قسم کی جڑی تعریفیں دے ہو گئی۔ ہم اگر اپنا گوجرا معاشرہ کی گل کر لیں، اپنا جڑا کہ ہم اجم بہت کچھ کرنوں باقی ہے، اجم مساں جڑو ہے وہ کسی دسن والا نے مٹھو بال گئے ہمنا راہ دسی ہوئے کہ آئی ہے اس پاسے مساں ہم چلے ہاں، کچھ قدم چلے ہاں، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ لیکن اس طرح کا معاشرہ کے بچ کہ جت پاٹ چپاٹی میں لیر میں جت
अल्हम्दुलिल्लाह किदा किदा टामो टामो अच्छो भी देखण में आवे, ऐसी गल नहीं, लेकिन एक ओवरऑल अगर जायज़ो लियो जाए तो फिर वही पोजीशन है कि जित घर में कदे चुल्ला में लकड़ियां की छिड़ी ना हुई या कुठली में आटा को पा ना होयो, तो फिर उत बाकी जिंदगी की चहल पहल तो बड़ी दूर की गल है। उत इंसान ना जान का लाला पै जाए, जित रोटी भी खान जोगी नहीं होती, तो उत फिर तालीम वाले पास मुड़नू इसमें शक नहीं कि मुझ सारा लोग कि जड़ा पुराना वक्त के बिच पैरों में पूल लावे में था त्याल गई और भुखा रह गया, नंगा रह गया, कई कई मील वो सफ़र जो है वो पैदल तय कर गए तालीम हासिल करने वास्ते जिमें था कोशिश करेंगे था, और खुदा ने उन्होंने मेहनत उन्होंने जो है वो फल भी दितो। लेकिन ओवरऑल जो एक जायज़ो लियो जाए तो फिर इसा माहौल के बिच जित महंगी किताब, वर्दी, फीस, बाकी जड़ा लवाजमात हैं, ये सारा जड़ा है ये एक मसलो बन जाए। और फिर किसी ने बड़ी खूबसूरत गल कही थी कि वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदम ले या तख्ती ले। तो इसके बीच मैंने लगा कि दो मिसरा के बीच मारा मुआशरा की पूरी तरह आकाशी कर छुड़ी गई है। फिर किसी दूसरी जगह किसी ने लिखा कि पढ़ लिख गया तो मांगेगा जीने का हक जरूर, पढ़ लिख गया तो मांगेगा जीने का हक जरूर, महंगा अगर है बच्चे का बस्ता खरीद लो। तो अगर लीर पार्टी च पार्टी नहीं है तो काय मुश्किल नहीं, अगर माली हालत बेहतर नहीं है तो काय मुश्किल नहीं, मगर इंसान अगर महजब है, तहजीब याफ्ता है, तो वह चीज़ मानी रखा है। इस दानिश्वर को कौल है कि इंसान की पूरी शख्सियत जी है या एक दुकान की तरह है, और उसकी ज़ुबान उस दुकान के ऊपर जंदरा आ रू कि जिस वक्त दुकान को जंदरों बंद है तो हम बारू या नहीं समझ सकता कि यह दुकान लोहार की है कि तिरखान की है कि कपड़ा की है कि सौदा सलफ की है कि किस चीज़ की है, और जिस वक्त वो जंदरों खुलेगा, दुकान खुलेगी, तो हमें फौरन पता चल। इसी तरह इंसान की ज़ुबान उसकी शख्सियत के ऊपर जंदरा की तरह है, ज़ुबान खुलेगी तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, जिस तरह मैं पहला अर्ज की है किस चीज़ की दुकान है। और फिर इसमें दर्दमंदी जड़ी है या बड़ी अहमियत रखा है। हमारा हमारी ही कौम का, हमारा ही कबीला का नाल ताल्लुक रखने वाली एक रूहानी शख्सियत, पंजाबी का नामवर शायर, आफाकी शायरों कहूँगा, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए तो कि दर्दमंदां दी यारी एवें जिवें दुकान अतारां, ये सोहबत तो याद आयो कि इंसान बहुत कुछ सीखे कि दर्दमंदां दी यारी एवें जिवें दुकान अतारां, सौदा भावें लइए ना लइए, हुल्ले आन हज़ारां। और तस्वीर को दूजो रुख हज़रत मियाँ साहब अलैहि रहमत ने इस तरह पेश की हुआ है कि बेदर्दां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारां, सौदा भावें लइए ना लइए, छिंडां पैण हज़ारां। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यूँ है कि तालीम हम आए रोज़ सुनता रहा, अखबारात में पढ़ता रहा, रेडियो की वसातत नाल, टीवी की वसातत के नाल जड़ा मालूमाती प्रोग्राम है हम सुनता रहा, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सुने हुए वो कन्ना बिचू कढ़ियो ना जाए, बल्कि उसके ऊपर अमल किया जाए। यह चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। और तालीम को जो एक बुनियादी मकसद जो है कि वो इंसान की ज़िंदगी ना अंधेरा दू कट गए, लो वाले पासे ले आने। लेकिन इंसान की ज़िंदगी वो एक रुख तालीम है और दूजो रुख जो है वो तरबियत है। ये दो ही चीज़ एक दूजा तो बगैर अडिठी रह गई। या मिसाल के तौर पर इस तरह हम कह लें कि अगर एक शख्स की ज़िंदगी ना उसकी पूरी शख्सियत ना दो बराबर हिस्सों में तकसीम की हो जाए, तो 8 आना उसकी तालीम है रुपया बिचू, तो 8 आना उसकी तरबियत है। एक बच्चा की अगर हम मिसाल ले लें कि आज मुकाबला जाती दौर है, कंपटीशन को दौर है, एक बच्चा अगर 90% नंबर 95% नंबर अगर वो ले लिया गो, लेकिन उस बच्चा ना वो उस तहजीब तो दूर है कि छोटा नाल शफकत किस तरह करनी है, बड़ा हालांकि इन चीज़ों को इखलाकी कदरों को आज का दौर में एक जवाल चले लोगों को, भावें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तिब में, अदब का लिहाज नाल सारी चीज़ इंटरनेट की शक्ल में हमारी मुट्ठी के बीच मौजूद है, हमारा हाथ की तली के ऊपर एक मोबाइल की शक्ल में
तमसारा देखने लगा वा कि हमारा कोल मौजूद है, हम पूरी दुनिया की सैर कर सकां। लेकिन इखलाकी तौर के ऊपर जिहड़ी है वे गिरावट देखण में आ गई। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस ना सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो इस हवाला नाल गल करूँ कि तरबियत जिहड़ी बच्चा की है, तो वह तरबियत तालीम के नाल-नाल मैं ज़रा अर्ज़ की कि अगर बच्चा का 95% नंबर हैं, तो वो उस परसेंटेज में अगर हम उसने देखांगा तो उसने शख्सियत का अद्धा हिस्सा में आ जा उस 8 आना बिचों वजह उसने वे 5 आना या 6 आना जीते आए। तो तरबियत एक दूजी चीज़ है कि जिसके पीछे हम देखांगा कि उस बच्चा को चाल चलन की है, उसका अखलाकियात का हवाला ना उसने हम देखांगा कि वो कितना है, या उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद गिरामी है कि थारा में सबसे बेहतर शख्स वो है कि जिसका अखलाक बेहतर है। तो उस हवाला के नाल उस शीशा के विच भी हमने अपनी ज़ात न परखण की ज़रूरत है। और हमना ज़रूरी इस वास्ते है कि जेड़ा लोग शोबा तालीम के नाल जुड़िया हुए हैं, या कम अज़ कम पेरेंट्स की लाइन में ज़रूर आवें ना, क्योंकि तरबियत को और तालीम को वो हिस्सों बच्चा के ऊपर उस तरह भी बड़ो असरअंदाज है कि असरअंदाज इस तरह के बारों को आगे उसने आगे पेट छड़ोके हुआ है पूछियो कि जोड़ा साहब हैं घर का मालिक हैं कि कीते ते अंदरू अद्धा ने निको चलायो है जाके तू भावें अद्धो थड़ा पर बैठो हुआ तो जा गया है को कि अद्धो है ही। तो उतों ही यो पहलो स्टेप है कि जो तुम्हारा बच्चा की तरबियत जड़ी है वह बिगड़नी शुरू हो जाए, उसके नाल तल्ख कलामी जड़ी है उसने परहेज की हो जाए। हाँ यह है कि बच्चा ना मजबूत बनाने वास्ते उसकी तरबियत में बिल्कुल बच्चा ना लाड प्यार एक अच्छी बात है होना चाहिए उसको, लेकिन इतनो लाड भी ना हो जाए अह लाडलो पूत तक कुनाड़ा मूत, या नौबत तक नहीं आनी चाहिए बच्चा की। जिस वक्त हम तरबियत करांगा उसके बीच उसना हमना इतनों सॉलिड बनाने की कोशिश करनी है कि हालात एक जैसा नहीं होता, किदा मजदूरी करके भी खानू को है, किदा मंग भी खानू को है, किदा कुर्सी के ऊपर बैस के भी खानू को है, ये तकदीर का खेल भी में। लेकिन उसके बीच हमने कोशिश यह करनी है कि हम अपना बच्चा तो मुराद है कि हमारा जो तलबा है, हमारा अपना जो बच्चा है उन सारा ना अपनी कौम है अपना मुल्क के बीच रहना रो हर वो बच्चों जो हमारा ते किसी न किसी तरीके मुस्तफीद हो सके उस नाम इतना सॉलिड तैयार करा ताकि वो जिंदगी की जी चुनौती है उन्होंने आस्ता आस्ता सह लिया उन्होंने इंजॉय करते चले उन्होंने कोई वो उन्होंने खुदा ना खास्ता बोझ ना महसूस करे उस चीज़ को। और इसमें वालिदैन के नाल नाल उस्ताद को ज़्यादा रोल है। अच्छा एक चीज़ कि इसमें हम देख लें कि अपना सॉरी कि अपनी या किसी दूजा की शख्सियत के ऊपर एक तवज्जो की जाए, एक नज़र सटी जाए, उसमें दो तरह चीज़ सामने आवेंगी। एक यूँ है कि खुदा महफूज रखे हम सारा ना, क्योंकि ये जिस वक्त हम ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनावांगा हम जड़ा इस एक स्टेप निकल तो बड़ा तो फिर जाहिर है कि हमारा बच्चा के ऊपर भी उन्होंने चीज़ों को उसी तरह असर पोएगा। वे उन्होंने वास्ते हम एक किस्म को रोल मॉडल माशा ले रहा और वे बच्चा हमारी ही नकल करेंगे उसी तरह आगे चलेगा। तो इंसान की शख्सियत ना अगर हम देखा तो वो किसी को अखान है कि तालीम जिसके अंदर चली जाए तो उसके बीच इज्ज आ जाए उसके बीच इनकसारी आ जाए वो नीम जाए नीम गटूर है वो, और जिसके ऊपरों गुजर जाए तो वो तड़िंग हो जाए और दूजा लफ्जा में उसने न्यांग तड़िंग। तो अर्ज करने को मकसद यू है कि खुदा ने हमने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ से नवाजी हुए और वह खूबसूरत चीज़ तुम पूछेंगे कि है तो वह खूबसूरत चीज़ खुद ही है। अल्लामा इकबाल अलैह रहमत को ज़िक्र किसी साथी ने इब्तदा में की थो। अल्लामा अलैह रहमत ने खुदी की बेहतरीन तारीफ़ की है कि एहसास नफ्स और तयन ज़ात को ना खुदी है। सिर्फ अगर यो एक जुमलो हम समझ लें कि एहसास नफ्स के है और तयन ज़ात के है तो हम खुदी का उस रास्ता के ऊपर चल सका, अपनी ज़िंदगी ने उस्तवार कर सका, अपनी ज़िंदगी ना अपना दो आने वाली जी पीढ़ी है उन्होंने वास्ते एक किस्म को नमूना बना सका ताकि वे उस रास्ता के ऊपर चलें और किसी तरह की मुश्किलात को सामना ना करें।
تو احساس نفس اور تعین ذات کی تھوڑی جی کدی اگر تشریح کی جائے، زیادہ تفصیل میں نہ جاتا ہوں، یوں ہے کہ خدا نخواستہ خدا بچا ہی رکھے، اکثر ہم دیکھا کہ خوشامد اور چاپلوسی ان چیزوں کے نال مجھ سارا لوگ جڑا ہے چمڑیا ہوا دستا رہے ہر وقت، کس واسطے اپنا اس عارضی دنیا کے بچ تھوڑا جا مقصد حاصل کرنے واسطے کہ خوشامد کی انتہا تک چلے جائیں یا پھر چاپلوسی کی انتہا تک چلے جائیں۔ تو جس وقت یہ دو ہی چیز جڑی ہیں یہ منافی ہیں خود ہی کے کہ یہ سر تیرے آستان سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ذہن کا بچ یوں ہے، اگر ہمارا ذہن کا بچ یوں تصور ہے، یوں یقین کامل ہے، یوں کہ کسی نہ عزت دین والو، کسی نہ ذلت دین والو، کسی مرتبہ کا اوپر بساڑن والو، کسی نہ مرتبہ کا اوپر لان والو یا ذات خدا بندے، اس تو بغیر کسی کا بس کی گل نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا رل گیا ہے کسی انسان نہ پڑٹ تار گیا اس نے اچیرو کرنا چاہے تو میرو یہ یقین ہے، میرو یہ ایمان ہے کہ وہ گنار کا دانا کا برابر بھی اچیرو نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی رضا اس کے بھی شامل نہیں ہوتی۔ اور پوری دنیا رل گیا اگر کسی نہ نیمو کرنے کی کوشش کرتی رہے، اس نے ٹان کی کوشش کریں، اس نے مندرو کرنے کی کوشش کریں، اگر اس کے بیچ خدا بند قدوس کی رضا شامل نہیں ہے تو اس نے کوئی نیمو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ہوں عرض کروں تو کہ خوشامد اور چاپلوسی اپنا کسی عارضی مقصد واسطے یا دائمی مقصد واسطے کرنی جڑو یا خودی کا منافی ہے۔ اس تو بعد اپریڑا چلے جام تو ایک سٹیپ اور آوے کہ جس نہ ہم یہ کہاں گا کہ اگر کسی کے کول جڑو میں پہلا ایک لفظ کے بیچ میں گزارش کی کہ نیانگ تڑنگ کہ وہ شخص کہ جس نے تھوڑو جو کچھ لب ہے گو تو پھر وہ اس نے پچا نہیں سکتا، اس نے ہضم نہیں ہوتا، پھر ہم دیکھیں گا کہ اس کی گردن کا بھی سریو پہ جائے، پھر وہ دوجہ نہ سلام کر کے راضی نہیں، پھر وہ اپنا پرایا کی پشان بھول جائے، پھر اس کے اندر کئی بار یہ دیکھنے میں آوے کہ پھر وہ حق اور ناحق کے درمیان جڑی وہ ایک کند ہے اس نہ سمجھ تو ہی نہیں بلکہ روڑ چھڑے، مسمار کر چھڑے۔ تو یہ دو ہی چیز تکبر ہے، کمانڈ ہے، غرور ہے، فخر ہے، یا بھی خودی وسط ہے نقصان دہ ہے، اور خوشامد ہے، چاپلوسی ہے، کسی کی چوڑی چکی کرنی ہے، یہ چیز بھی دو یا چیز بھی جڑی ہے یا خودی کا منافی ہے۔ اور جس وقت ہم احساس نفس یہ ہوئے گو کہ میں نے خدا نے کس چیز نے پیدا کی ہوئے ہوں، ایک قطرہ تو پیدا ہوئے گا اور آخر کی ہے میرا انجام خاک در خاک مٹی کے بھی جانوں، جو احساس نفس ہو جائے۔ اور تعین ذات بھی اپنی ذات کہ میرا دائرہ اختیار کے بیچ ہے ہی کچھ نہیں، آج میری لیر، میرا کپڑا، میری کلاؤ دستار یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، ایک دم میں حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچیں گا اور یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ کون کتنا نامور ہے، کون کتنی جاگیر کو مالک ہے، کون کتنا عہدہ و اقتدار کو مالک ہے، کون ارباب اقتدار کے نال کس کی جڑی ہے وہ سنڈ گنڈ ہے، یہ ساری چیز ختم کر دینے والی ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہو جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، سیمنٹ اس میں گارا ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اور حقیقت ساری یہی ہے اس چیز کی۔ تو اس میں اگر ہم نیمگے نہیں چل سا، اگر ہم میانہ روی اختیار نہیں کر سا، نہ چاپلوسی وے گی، نہ خوشامد وے گی، نہ چوڑی چکی وے گی، اور نہ تکبر وے گو، نہ گمانڈ وے گو، انہاں دو چیزاں کا درمیان والو جڑو رستو ہے اس میں خود ہی کی۔ اور جس وقت ہم خود ہی کو تحفظ کریں گا تو یقیناً ہماری زندگی سمر کے باندھے آوے گی، نکھر کے باندھے آوے گی، پھر آن والی نسلوں کے اوپر اس چیز کو براہ راست میں جس طرح پہلا عرض کی ہو کہ اثر پوئے گو، ہمارا بچہ ہماری نقالی کریں، ہماری نقل کریں، اور یہی بچہ جڑا ہے انہوں نے آمنا دیکھ کے آگے چلنا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ انسان غلطیاں کو پتلو ہے، خطا ہو جائیں اس کو بتقاضۂ بشریت، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ تاکہ اپنی زندگی کے بچ جڑی کوئی منفی پہلو ہے ہمارا انہوں نے کوشش کی جائے کہ پیچھے ہٹ جائے، اور علمی میدان میں، ادبی میدان میں، تعلیم کا میدان میں
इन्हां सारियां चीज़ां दा उप्पर हम अमल करियै अग्गें बधने की कोशिश करां, तां जाके ज़िंदगी हमारी जिहड़ी वा दुनिया वास्ते एक रोल मॉडल बनेगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरी कोई फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू नहीं है या ये गल नहीं, डिंगी टेढ़ी कुछ गल्लें, तुम सारा इन्हां ते वाकिफ़ हैं, हूँ थारी समा ख़राशी नहीं भी करना चाहता, लेकिन यह है कि दिए से दिए को जलाते चलो। जिहड़ी गल किसी शख्स का इल्म अगर एक गल भी का चंगी है, उसका सर ऐन फ़र्ज़ है कि वह गल दूजा तोड़ी पहुँचानी, इस नीयत के नाल, इरादा के नाल कि शायद मेरी अपनी इस्लाह हो जाएगी। और जिस वक्त इंसान वाकई दूजा ना एक तबलीग करेगा, तो उसकी अपनी ज़ात की भी नालों नाल इस्लाह होती रहे, और बल्कि ज़्यादा वै। तो बच्चों का हवाला नाल जनाब यह चीज़ कि हम अपना बच्चों के बिच, खासकर हमारी कौम का जोड़ा बच्चा है, हम क्योंकि हम खुद उससे गली दू लंघे, दूर दराज इलाका तो ताल्लुक रखने वाला में, जिस वक्त हम हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या कॉलेज तोड़ी हमारा बच्चा पहुँचेगा, गल करना थोड़ा जहा चकता रहे। हमने बहैसियत उस्ताद, बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत अगर खुदा ने किसी ने कोई मनसब दिता हुआ है, कोई ओहदा वगैरह किसी जगह भी है, तो बच्चों के पीछे खुद एतमादी पैदा करनी है, तालीम के नाल नाल यह चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू के बीच अगर कोई बच्चों कल दूगो और किसी नौकरी का हसूल वास्ते जा लगो, अगर बच्चा ना इल्म है, जानकारी है, तालीम उसने अच्छो खासो पढ़े हुआ है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी को अगर फुकदान है, अगर उसको काटो है खुद एतमादी को, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इस वास्ते बच्चा के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना जो भी हमारा से अहम जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा अमूमी तौर पर देखा कि हमारा कबीला का जिस वक्त आला तालीम का हसूल वास्ते कॉलेज में पहुँचे या यूनिवर्सिटी में पहुँचे, फिर एक क्योंकि उनके बीच कुदरती जी बात है कि एहसास कमतरी किधर ना किधर टिको ही रह जाए, वो फलाना गिरा दूंगा, मेरो बाप वो फलाना मजदूर है, नहीं, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। ताकि हम बच्चा को कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसने इस तरह बिल्ड करा कि उसके अंदर खुद एतमादी आनी चाहिए कि नहीं, अगर वो गरीब बंदा फिर क्या है, अगर हूँ किसी तो दूजा तो खुदा ना खास्ता थोड़ा जो काटा, तो फिर क्या है, हूँ अगे बढ़ सकूँ, अगे कुछ कर सकूँ। तो हमारा बच्चों की तादाद स्पोर्ट्स में आला तालीम को जिक्र की हुई इसमें बड़ी काटत है, गेम्स का भी इनकी शिरकत बड़ी काटत है, एनसीसी नाम ले लिया, एनएसएस ना ले लिया, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जी हैं इसमें हिस्सेदारी हमारा बच्चा की काट में हमने जित भी मौका मिला है। या नहीं है कि उन्हें एक फॉर्मल एजुकेशन की क्लास के भी टीचर जा गया था ये सारी चीज़ समझावे, वो नहीं, कार के भी हम जिक्र असकार करता रहे चीज़ों को, दस्तरखान पर बैठा हुआ तो दो गल चंगी दसी जा सके, मसीत भी जो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो दो गल किसी ने चंगी कही जा सके। और मैं पहला जिस तरह अर्ज क्योंकि किसी ने अगर का चंगी गल पता है, दोबारा यह चीज़ रिपीट करूं कि उसका सिर एन जिम्मेदारी है, ये फर्ज है उसके सिर के वह गल दूजन थोड़ी कुछ आई, खासकर आने वाली नस्ल तक। तो ये सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन अपनी मिट्टी के नाल हमेशा हमने जुड़े रहना। अपनी मिट्टी तो मुराद है कि हमारी कौम का खासकर हमारा कबीला का इल्ला माशाल्लाह अच्छी मिसाल भी हैं, लेकिन जी मेजॉरिटी में मिसाल है इस किस्म की कि अगर कोई अपनी मेहनत के ऊपर अपना पैरों पर खड़ो हुआ है, किसी ओहदा पर पहुंचे हुआ है, तो फिर उसने पहलो कम यो की हुआ है कि माइग्रेशन की है, उसने हिजरत की है। अब हिजरत उसकी अपनी ज़ात वास्ते फ़ायदेमंद हो सके, लेकिन समाज ना सोसाइटी ने उसको फ़ायदा तो है कि वह हिजरत बाकी आला वास्ते भी जी वह किसी न किसी तरीका के नाल मुफीद है। उन्हें ज़रूरी नहीं कि कभी कोई किसी की मदद करेगा तो वो जनाब यू है कि गिरा बना गया उसका मुँह के बीच कर लेगा, नहीं, किसी ने चंगी गल भी दस छुड़नी सदकू है, किसी ने एक बच्चों गिरांग हुआ है दूर दराज हुआ है जिसने कि पता नहीं कि मैं 10वीं की है तो हूँ इस तो बाद मैंने क्या करना चाहिए, अगर उसने क्योंकि ये इस पिछू मुझ सारी चीज़ जी है हूँ तनबिरती थारे नाल जिक्र करूँ कि उसने अगर कोई उस्ताद छड़ो अयो दस छुड़ा कि जनाब इस रास्ता पर तू चला गो, तो वह गल जी है वह लखा रुपये तो ज़्यादा जी है वह उसकी कीमत वह उस बच्चा की जिंदगी ने बनाने वास्ते है। लेकिन हमारे अंदर वह एक ही होनी चाहिए, एक हुडक वह ताकि इचर आराम ना लभे, इचर सुकून ना वह, इत्मीनान ना वह कि जिचर हूँ या कोशिश ना करूँ कि मेरी वजह तो जित तक हूँ पहुँचे वहाँ कम अज कम मैंने सुनने वाला, कम अज कम मेरा जड़ा आने वाला बच्चा है छोटा है वे सारा था कि मेरा तो बेहतर,
या नीयत जिस वक्त हम लेके चलांगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देण वालो है, सबना इज़्ज़त देण वालो है, वक़ार देण वालो है, तो कोई ऐसी गल नहीं। और चंगी गल किदा कोई कहे तो उसको अड़खत भी नहीं महसूस करनी चाहिए। कई बार यूँ है कि ओ जानू कर छोड़ी जी, ओ जानू एक जगह चंगो भी वे कि जित फर्ज करो थारे नाल कदे कोई मंदी करे लगो तो इंतकाम ना लेता मैं वो जानू कर छोड़ना चाहिए, वो खुदा वर सटना चाहिए। तो हूँ अर्ज़ करूँ तो बच्चा का हवाला ना हमारा बच्चा थोड़ा जा एहसास कमतरी को शिकार में, थोड़ा जा ड्रोकड़ में, उनको वो डर जिस वक़्त हम कढ छुड़ांगा, वो इस तरह है कि ज़रा सर्दियाँ के बिच ठंडा इलाका में पाइप पानी की वजह तो जाम हो जाए, तो जिस वक़्त पाइप के बिच कोरो बन गयो, तो पानी आणु-जाणु बंद हो जाएगो। इसी तरह उनके अंदर वो एक किस्म को एक झक जिहड़ो है, एक खौफ है, एक हेजिटेशन जिहड़ी है, वह मुझ सारी चंगी चीज़ां ना अंदर नहीं जान देती। तो बेहतर यूँ है कि हम अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक, अपना इल्म के मुताबिक जितनी हमारी रसाई हो सके, हम उस खौफ न बाहर कढां, उस हेजिटेशन न बाहर कढां। वो स्टेज को खौफ है, वो स्पोर्ट्स का मैदान को खौफ है, वो बच्चा का किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैसण को खौफ है। ये सारा खौफ या इस किस्म की और भी मुझ सारा जिहड़ा वे कुछ अरसा तक हमारा जिहड़ा मस्कीन है इन्हां ना अंधेरा की मांग और डरावो दस के वो एक त्राह कढण की कोशिश की जाती रही। तो हमने कोशिश करनी है कि ये यो अंधेरा की मांग और डरावो दितो जाए, यो त्राह ताकि उन्हें वो ना निवे, इस तू ताकि उन्हें ना छल ना पोए। और हमारी ज़िंदगी को मकसद ताएं हम कामयाब होंगे कि अपना बच्चा ना इस छल बैंड को बचा लें। हमारी तालीमी हवाला के नाल हम देखा कि हमारा बच्चा को गवर्नमेंट की तरफों मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जिनके बिच एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है जिसमें आम बच्चा चलें, इस तो हट के अगर हम देखेंगे थोड़ो जो तो हमारी जी सीजनल माइग्रेशन में टोका वाले पास है पर चीज़ में उस वास्ते सीजनल स्कूल दिता गया है। हमारा गुजर हॉस्टल्स उनमें यकों के 90-95% तो ज़्यादा बल्कि आज शायद कि 100% भी महंगा वार्डन्स जड़ा है हमारा लाया जी, लेकिन नतीजों के वह इस पर कुछ ना ही कहूँगा बेहतर वैगो कि टीचर जिस वक्त मारो सीजनल टीचर हो गयो या रेगुलर स्कूल को टीचर हो गयो या हमारा वार्डन हो गयो, उसके अंदर एक किस्म की एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, एक खुद एहतसाबी को एक जिस नाम का उनसर वो पैदा होना लाजमी है कि इन बच्चों की वजह तो मेरी रोज़ी लगी हुई है और मेरा सिर्फ यह ऐन जिम्मेदारी है ताकि ये बच्चा कल को किसी अच्छी जगह पर पहुँच सके। और ये समाज को वो हसास तबको है ये बच्चा कि जड़ा अपना नाम है नाल अपना इलाका का नाम है नाल माँ बाप का नाम है नाल कदे हूँ वार्डन बन गयो कदे हूँ उस्ताद आई को या वार्डन ही छोड़ो कदे उस हॉस्टल को चौकीदार भी हाँ हूँ कुक हाँ तो मेरी यह जिम्मेदारी बने ताकि मेरा को निकलने वाला जड़ा बच्चा है इनकी तरबियत अच्छी है, इनको चाल चलन बाकी का बच्चा तो जरूर है वो बेहतर करने की कोशिश करा कदे उनका बराबर भी हो जाता भी बड़ी बात है क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जमालियाती हिस्स रखी हुई है उन्हें बच्चों के बीच वह सारी हिस्स मौजूद है सिर्फ उसने परख है सामने आने की कोशिश करनी है। तो अर्ज करूँ तो गुजर हॉस्टल्स की और हमारा जो सीजनल स्कूल है ये हो गया या कुछ एनजीओस जड़ा फी सबीलिल्लाह काम करें कि फलाह बहबूद वास्ते इसमें बच्चों की तरबियत वाले पास ध्यान देना चाहिए और खासकर हमारा सीजनल टीचर को जिक्र करूँगा या रेगुलर स्कूल टीचर जड़ा है हम वो कहने कि हान करेंगे आह घोड़ा ना तम ध्रुव राग पानी थोड़ी ले जा सकें उत तक यो थारा दायरा इख्तियार के पीछे लेकिन उस जगह घोड़ा ना तम पानी प्यालने कभी सारी दुनिया रल के भी कोशिश करेगी उसमें तम पानी प्याल नहीं सकता इस वास्ते हम अपना सिस्टम ने देखा कि जितनी मर्जी सख्ती की जाए हुकूमती सतह पर इस किस्म की बेहतरीन स्कीम जी सामने आवे कि इस तालीमी मैदान के बिच खासकर हमारा जिस पिछड़िया हुआ जड़ा लोग उन्होंने अगे किस तरह आने जाए लेकिन जित मारा लोग इन्होंने सिर्फ अहम जिम्मेदारी है कि वे डबल शिफ्ट में भी काम करें। डबल शिफ्ट तो मेरी मुराद है कि जित अगर वे 40 मिनट की क्लास नहीं लगा तो अगर फी सबीलिल्लाह बेला बैठा हुआ है तो 20 मिनट की क्लास 40 मिनट की और भी ले सकें ना थोड़ो जो अपना अपना उस तरह करें ताकि बच्चा ना मोल्ड करने में भी एक मुस्बत किरदार अदा कर सकें। तो ये कुछ जनाब
मेरी टूटी फूटी गल्ल है। मैं अपनी पहला अर्ज की कि कुछ तन बेरती हैं, कुछ सुनी हुई हैं, ते इसमा बस तारे गोश गुजार की। मैंने उम्मीद है कि तुम सारा इन चीज़ों पर मेरी जड़ी चंगी गल्लें वे सुनेगा और जड़ी चंगी नहीं है तो वे मेरे से टिकी रहेगा। एक चीज़ आखिर में बस अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा कि दीनी तालीम की बच्चों के विच होना जरूरी है कि जब तक जिस घर के विच, जिस माहौल के विच, जिस ग्राम मोड़ा महल्ला के विच दीनी मिजाज नहीं होने लगो, उस बच्चों के विच वह आकड़ आवेगी, वह तड़िंगी आवेगी, उनके बीच हलीमी नहीं आसे, उनके बीच इज्जो इनकिसार नहीं आसे। उन्होंने अपनी जिंदगी को यो मकसद पतो नहीं चल से, सिर्फ पैसों से यो नहीं, ये चीज़ खत्म हो जाने वाली है। बाकी रहने वाली कोई और चीज़ है और वह के बाकी रहने वाली चीज़ दे उसने किस तरह जिंदो रखे जा सके, ये जो दीनी में माहौल है वो, जो दीनी मिजाज है वो उत या चीज़ जड़ी है वह परवान चढ़ेगी। मैं थारो मुझ सारो वक्त ले लियो, थारी समा खराशी हुई, थारा सारा ख़वातीनो हज़रात जितना भी मुंतज़मीन है, थारो सारा को एक बार फिर ख़ासकर तारिक अबरार होरांगो बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुमने नाचीज़ ना वक्त दितो इस अहम तरीन और हसास तरीन मौजू पर अपना कुछ टूटा फूटा लफ्ज़ रखने को मौको दितो। थारो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह बहुत ही अपना खूबसूरत जरी ख्याल नाल तुमने नवाजियो। मेरे को लफ्ज़ों की थोड़ा है हूँ किस तरीका ना थारो शुक्रिया अदा करूँ और तुमने वाकई समुंदर ना कोजा में बंद करने की कोशिश की। अल्लाह ताला थारी ये कीमती गल हमना चोट बदन की तौफीक बख्शे और इन्हां पर अमल की तौफीक बख्शे। इसके बाद प्रोग्राम की अगली कार्रवाई वास्ते हूँ निजामत की दरख्वास्त करूँगा अपना साथी मॉडरेटर मसूद अवान साहब और अन्ना मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं कि वे प्रोग्राम की अगली कार्रवाई संभालें। मसूद अवान साहब। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, बिजी हैं, तुम कंटिन्यू करो और ऑडियंस क्या वाला नाल जिहड़े मुख्तार साहब ना दावत दियो। जी मुख्तार साहब, तुम मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद मुख्तार साहब भी नेटवर्क की आज दिक्कत है, काफी सारा साथी है ना जिसकी वजह तो मतलब ज्वाइन करना जी और आवाज में भी दिक्कत आ रही है, वे भी शायद जी मुश्ताक भाई तुम कंटिन्यू करो निजामत। मुख्तार साहब भी हमारे नाल इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसके बाद हमारा आज का दूजा मजमान जड़ा है जनाब मुश्ताक बडगामी साहब, नहायत ही खलूस और एहतराम के नाल उन्होंने दरख्वास्त करूँगा कि वे आज का दिता गया मौजू पर अपना जरिए ख्याल नाल नवाजें। जी मुश्ताक बडगामी साहब, तुम अपना माइक अनम्यूट करो और अपनी तकरीर ते नवाजो। जनाब मुश्ताक बडगामी साहब। मुश्ताक बडगामी साहब और ऑडियंस पैनल में चले गया वापस, हूँ दोबारा उन्होंने दरख्वास्त करूँगा कि वे स्पीकर पैनल में आवें और अपना जरिए ख्यालात नाल नवाजें। जी मुश्ताक बडगामी साहब।